Today we gather for something truly special. Dastane Guru Dutt, a musical retrospective, a heartfelt and lyrical tribute marking the centenary of the legendary actor and director Guru Dutt. This isn't just a look back, it's a celebration of one of Indian cinema's most poetic storytellers. By blending soulful music and evocative storytelling, this retrospective invites us to experience the spirit, philosophy, and unforgettable melodies of Guru Dutt. Can we have a look at the AV, please? कुछ लोग फिल्में बनाते हैं और कुछ लोग फिल्मों में जान डाल देते हैं। हमने कहा हम जब पिक्चर प्रोड्यूस करेंगे आपको डायरेक्शन का स्कोप देंगे और उसने कहा हम कभी डायरेक्टर बनेंगे आपको स्टार बनाएंगे कि बाजी प्लान हो रही है आप आओ बाजी बनाओ और बाजी उसने हिट बनाई। बाबूजी धीरे चलना मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या होगा। जाने क्या तूने सबसे खूबसूरत क्लोजअप अगर किसी अभिनेत्री का लिया गया है तो वो उस प्यासा में वहीदा जी का एक क्लोजअप है, ऊपर ऐसे देख। खामोश आदमी थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। सीन ये है, मूड ये है, उसको महसूस करके करो। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। मेरा एम्बिशन ये था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा तो मैं जाके गुरुदत्त का असिस्टेंट बनूंगा। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर ये बिखरी जुल्फे ये खिलता कजरा। So to me, Guru Dutt is an inspirational artist. गुरुदत्त जो फिल्म मेकर है सोचते एक पोइट की तरह है, जिंदगी से ताल्लुक एक पोइट की तरह रखते हैं। मुझे शिकायत है उस तहजीब से। रियल जेन्युइन टैलेंट दे बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर। गुरुदत्त तब इतना बड़ा आदमी नहीं था जब आज है। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? To introduce this retrospective session and to share memories and insights, we are privileged to have a renowned filmmaker and mentor here. Please join me in giving a heartfelt welcome to Sri Rahul Ravel, sir. Rahul Ravel. I'm a filmmaker from Bombay, and here to for you all to see this tribute to one of the greatest filmmakers we've ever had in India. That is Guru Dutt ji. I'm here courtesy Cinemazi, which is Suman Batra and his wonderful wife Asha, who's here, who have really brought this whole thing together. And I'm sorry, I need to read out a few things because my memory does not let me hold that much in mind. See, I was never a contemporary of Guru Dutt. He was far older than me. And the one distinct thing I remember was that the day he passed away, the next day in the morning, people came to know about it. And we were very small children. We were watching a cricket match in Bombay, which was the veteran Indians playing against the veteran Pakistanis. So for us, it was a big thing to watch that. And while that match was going on, in about 20 minutes after that, my father, who's a filmmaker also, my father and mother came to the children's stand where we were sitting. With them was Rajendra Kumar and his wife, and was Raj Saab and Krishna Aunty. They walked there and they told us that we have to go somewhere, the cars are here, and you all come in the cars, don't worry. They had just come to know that Guru Dutt ji was not there. So they had gone for his funeral. But this over here is a completely new experience, which has come because of these wonderful couple here, who are basically lawyers, but I've never seen so much affection for cinema as the two of them have. They actually live cinema. More than what I do is, I think, is what they do, and especially Asha.
She is really wonderful and she deserves a big hand for this. Okay, this is a tribute which is one of its kind, produced by the gentleman here. Where is Vikas? He is the producer. He's produced this, and it's a unique way of talking about Guru Dutt Ji. It's a collaboration of his music, stories, which are all told by the wonderful lady. Where is she? Ma'am? Fauziya ji? Fauziya ji is the one who will be narrating this whole thing, and I'm sure it'll be a unique experience for everybody here. And I hope you guys enjoyed, which I'm sure you will, and especially reliving the memory of Guru Dutt Ji is a very big thing itself. And I wish there were people like him around. And I would also say that, I'm not very far away from joining these masters where they are in the next world. And I don't know if they'll finally do a Dastana Rahul Ravel or not, which is something which I would really, so maybe my sitting here and talking to people might influence them. He looks in here, poor chap, he went away, so now it's time we did something for him also. But you cannot even compare me. I can't compare myself to a person like Guru Dutt. I wish I knew about cinema even 5% of what that man knew. I won't hold you back. I think this is more compelling, and I hope you enjoy it. That's important. ख्वातीनो हजरात आदाब, नमस्ते। मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं दास्तान गुरु दत्त लेकर। दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। तो दास्तानों की ये महफिलें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हुआ करती थी। लोग कई कई दिन और महीने और साल तक ये दास्तानें सुना करते थे। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, भाई ये लोग सोते नहीं थे क्या? इत्तेफाक की बात है कि मेरा ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से है, तो बिल्कुल सोते थे। लेकिन मैं आज क्योंकि गोवा में आए हैं, थोड़ी सी दास्तान के लिए मैं 5 मिनट लूँगी कि वो दास्तान को रोकते थे और हर थर्सडे, मतलब नेक्स्ट थर्सडे क्या होगा, और लोग आते थे सुनने के लिए। ये ट्रेडिशनल दास्तान गोई की मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक दास्तान गो ने बयान करना शुरू करा दुल्हन की खूबसूरती, उसके नाक, उसके कान, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी उंगलियाँ। जनाब 2 महीने हो गए वो सिर्फ दुल्हन की खूबसूरती बयान कर रहा था। तो आप ही जैसे लोगों में से आवाज़ आई, भाई 2 महीने हो गए, इसका घूंघट तो उठा दे। तो आप घबराइए नहीं, हम आज दास्तान नहीं रोकेंगे। इसीलिए ये किस्सा मैंने सुनाया है कि ये ट्रेडिशनल दास्तान गोई नहीं है, ये हमने म्यूज़िकल दास्तान गोई इन्वेंट की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बस दास्तान गोई में कुछ आदाब हैं कि अगर आपको हमारी दास्तान में कोई बात पसंद आए, लुत्फ़ आए, आपको मज़ा आए, तो आप कहेंगे, क्या करेंगे? हौसला अफजाई करेंगे। और आप कहेंगे जी बिल्कुल। भाई कहा जाता था कि एक ज़माना था कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। मेरा ये मानना है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज्जत उतर जाती है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप वाह कीजिए, ताली बजाइए। और जी शुक्रिया। अमूमन ऐसा होता है कि गाने के बाद ज़रूर ताली बजती है। अब ये जो अभी जो हम कहानी आपको सुना रहे हैं, ये हिंदुस्तानी में है, थोड़ी सी उर्दू में भी है, तो आप ज़रूर प्रोस पे ताली बजाइए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा, अरे भाई वाह, इनको तो ज़बान आती है। तो हाज़रीन और सही जगह पे दाद दीजिए। तो आज की शाम का मैं आगाज़ करती हूँ। उससे पहले 2 लोगों का शुक्रिया मुझे अदा करना बहुत ज़रूरी है। ये दास्तान गुरु दत्त यहाँ तक नहीं पहुँचती अगर विकास जलान साहब ने इसे क्यूरेट एंड प्रोड्यूस नहीं किया होता, और आशा बत्रा ने इसकी रिसर्च नहीं की होती, और अब्बास कमर ने इसको लिखा नहीं होता। तो ये टीम वर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं दास्तान का आगाज़ करती हूँ।
तो हाजरीन, आइए दास्तां का करें आगाज, एक बुलबुले चमन को जिस पे था नाज, तर्ज जिसकी जुदा जुदा अंदाज, जो के था अपने वक्त की आवाज, जिसका आशिक तमाम आलम है, जितनी तारीफ कीजिए कम है, आज हम कर रहे हैं उसको याद, आप थी जिसकी खामोशी फरियाद, फिल्म साजी के फन का था उस्ताद, उसके जैसे हुआ न उसके बाद, धूप में जो फुहार मध्यम था, बज़्म गुल में जो मिसले शबनम था, जिसने छेड़ी थी कैमरे पे गज़ल, नग़्मे जिंदगी बसाज़े अजल, जो गया अपनी रोशनी में पिघल, ढूंढने पर मिले न जिसका बदल, अक्स दरक्स था महवे कलाम, है गुरुदत्त उस चराग का नाम, है गुरुदत्त उस चराग का नाम। तो हाजरीन, आज हम जिस अजीम फनकार की दास्तान लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो सिर्फ एक फिल्मकार नहीं, सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि एक शायर भी था, जो रीलों पर उदासी की गज़ल कहने का हुनर जानता था। उसके हिस्से में गमों की कड़ी धूप तो खूब आई, पर खुशियों की रिमझिम से उसकी दुनिया कम कम ही आबाद हो सकी। ये बात सच है कि उस तक पहुंचने का रास्ता जिंदगी की तल्ख हकीकतों की तरह पथरीला और खारदार है, लेकिन फिल्म के पर्दे पर उसका जादू सदाबहार है, उसका अफसाना ख्वाबों के खूबसूरत जजीरों की तरह आबाद है, पर हकीकत दज्जगों और बेचैनियों की एक अनकही रुदाद है। आज हम वही रुदाद लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो हाजरीन, किसी और गम में इतनी खलीशे निहा नहीं है, गमे दिल मेरे रफ़ीक़ो गमे रायगा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। दिल वालों के बीच में मेरी अखियाँ हैं बदनाम, दिल वालों के बीच में मेरी अखियाँ हैं बदनाम। हूँ एक पहेली फिर भी कोई पूछे मेरा नाम, हूँ एक पहेली फिर भी कोई पूछे मेरा नाम। ये चली बूझो तो कित जाओ रे, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। तो हाजरीन, इस कहानी का आगाज़ होता है 1920 में, जब मंगलौर के एक छोटे से कस्बे में एक नया नवेला जोड़ा किसी ज्योतिषी के पास पहुंचता है। जिंदगी की जद्दोजहद से परेशान ये जोड़ा अपनी आप बीती उस ज्योतिषी को सुनाता है और अपनी किस्मत का राज दरियाफ्त करता है। लड़के का हाथ देखते ही उस ज्योतिषी की आंखें चमक उठती हैं। बेटी, तुम्हारा नसीब बहुत ऊंचा है, चंद ही बरस के अंदर तुम्हारे घर एक ऐसे बेटे का जन्म होगा जिसकी पहचान सरहदों में कैद ना हो सकेगी। उसकी रोशनी तुम्हारे आंगन से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचेगी।
दुनिया उसे उसके नाम से नहीं, उसके हुनर से पहचानेगी। वक्त गुजरता है, जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियों और गमों के साथ आगे बढ़ती है, और फिर आती है वो तारीख, यानी 9 जुलाई 1925, यानी गुरुदत्त की पैदाइश का दिन। पैदाइश के 12वें दिन पालने की रस्म हुई। पूरा घर फूलों और रंगोलियों से सजाया गया। भोज, प्रसाद, उपहार और आशीर्वाद से पादुकोण परिवार का आंगन खिल उठा। बच्चे के लिए 2 नाम सुझाए गए। किसी ने कहा वसंत कुमार रख दो, तो किसी ने कहा गुरुदत्त। चूंकि जन्म गुरुवार को हुआ था, इसलिए वसंती और शिवशंकर ने अपने बेटे का नाम गुरुदत्त रखा। हाजरीन, गुरुदत्त का परेशानियों से नाता काफी पुराना था। उनके पिता सफलता में नहीं, कविता में यकीन रखते थे, जो जिंदगी गुजारने और घर चलाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए परिवार को बड़े बेटे गुरुदत्त से काफी उम्मीदें थीं। शहर दर शहर भटकता हुआ ये परिवार आखिर में कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता में ही गुरुदत्त के बचपन का बाकायदा आगाज हुआ। हाजरीन, कदरे जौहर शाहदानत या बदानत जौहरी, यानी मोती की कदर या तो बादशाह जानता है या सुनार। कलकत्ता में ही गुरुदत्त की मुलाकात उस शख्स से भी हुई जिसने उनकी तमाम बेचैनियों, उनके तमाम सवालों को सिनेमा की तरफ मोड़ दिया। उस शख्स का नाम था बीबी बेनेगल। बेनेगल गुरुदत्त के रिश्ते के मामा थे और यकीनन गुरुदत्त के पहले गुरु भी थे। बेनेगल ने गुरुदत्त के अंदर छुपे हुए कलाकार को बचपन में ही पहचान लिया था। गुरुदत्त हर इतवार को अपनी नानी के साथ ट्राम में बैठकर बेनेगल के घर पहुंच जाते। उनके ग्रामोफोन पर एस.डी. बर्मन के गाने बार बार बजाते। उनकी गैर मौजूदगी में उनका कैमरा उठाकर चिड़ियाघर चले जाते और वहां जानवरों की तस्वीरें खींचते। कैमरे से खेलते रहते और कहते, एक दिन मैं भी फिल्म बनाऊंगा मामा। गुरुदत्त के इस मासूम ख्वाब पर बेनेगल ने उन्हें कभी नहीं टोका, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की। बेनेगल की दुनिया में ख्वाब देखने की इजाजत थी। वो ऐसी दुनिया थी जहां तखय्युल को दबाया नहीं जाता था, बल्कि परवान चढ़ाया जाता था। कलकत्ता में भी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई। घर की हालत खस्ता थी। खर्च चलाने के लिए वसंती ने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैट्रिक पास करने के बाद गुरुदत्त को भी मजबूरन नौकरी करनी पड़ी। शुरुआती दिनों में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी और फिर हिंदुस्तान लीवर्स के ऑफिस में मुलाजमत। जिंदगी बेहतरी की तरफ तो बढ़ रही थी, लेकिन गुरुदत्त अंदर से खुश नहीं थे। एक सुबह गुरुदत्त अपने मामा बीबी बेनेगल से मिलने गए। बेनेगल ने हाल ही में एक नई पेंटिंग बनाई थी।
उस पेंटिंग में एक आदमी के पूरे जिस्म को एक सांप ने जकड़ रखा था। पेंटिंग देखकर गुरुदत्त से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, मामा, इसको देखकर मेरा नाचने का मन कर रहा है। बेनेगल उनके अंदर उठ रहे तूफान को फौरन भाप गए। वो गुरुदत्त को कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन ले गए और कैमरा खोलकर कहा, नाचो और अपने अंदर की बेचैनी को बाहर निकाल फेंको। फिर क्या था, पुरजोश और मदमस्त गुरुदत्त ने बेनेगल की लाल शॉल अपने सिर पर रख ली, अपनी कमर पर एक पीला कपड़ा बांध लिया और अपनी धुन में रक्स करने लगे। वहाँ कोई संगीत नहीं था, खामोशी की ताल थी और उस पर थिरकते हुए गुरुदत्त। बेनेगल के कैमरे में कैद ये कोई मामूली रक्स नहीं था हाजरीन, ये नौजवान गुरुदत्त की आज़ादी का रक्स था। तो रक्स से आज़ादी हुआ जब खामोशी की ताल पर चढ़ गया ख्वाबों का नशा जिंदगी की चाल पर, तोड़कर पिंजरा परिंदा आसमां में उड़ गया और किताबे उम्र में ताज़ा वरक एक जुड़ गया, और किताबे उम्र में ताज़ा वरक एक जुड़ गया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाग लगा ले, लगा ले, दाग लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाग लगा ले, लगा ले, दाग लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाग लगा ले, लगा ले, दाग लगा ले। तो हाजरीन, दोस्तों की मदद से उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में अल्मोड़ा में गुरुदत्त ने ऑडिशन दिया और फौरन उनको वहां चुन भी लिया गया। जब गुरुदत्त कलकत्ता से अल्मोड़ा पहुंचे तब उनकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी। काले घने बाल, खामोश चेहरा और ऐसी मासूमियत कि जो एक बार देख ले वो भूल ना पाए। उदय शंकर को उनके टैलेंट से ज्यादा उनके अंदर लावे की तरह उभलता हुआ जज्बा पसंद था, वो जुनून जो किसी फनकार की पहचान होता है। उनके अंदर जो आर्ट था वो उसी वक्त जाहिर हो चुका था। सबको मालूम था कि ये लड़का आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाला है। तो इंडिया कल्चर सेंटर में उनके रूम पार्टनर थे सरदार मलिक। जी हाँ, मशहूर संगीतकार सरदार मलिक। वो कहते थे, भाई मुझे गाने का बहुत शौक था और गुरुदत्त को पढ़ने का। वो दिन रात किताबों में खोए रहते। कहते थे, अरे कैसे करें मलिक, गाने से मेरा ध्यान भटकता है। मलिक ने कहा, ऐसा करो, एक दिन तुम सो जाओ, मैं हल्की आवाज में गा लूंगा, एक दिन मैं सो जाता हूँ, तुम पढ़ाई कर लेना। खैर, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने उन्हें आखिरकार वो जगह दे दी है जहां वो खुलकर सांस ले सकते हैं। रक्स, मौसीकी, तस्वीर और तसव्वुर, यही तो थी उनकी दुनिया। अभी चंद साल ही गुजरे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया और उदय शंकर को अपना डांस सेंटर बंद करना पड़ा। ये खबर गुरुदत्त के लिए एक ज़बरदस्त सदमा थी हाजरीन। जिंदगी अभी संभली ही थी, आँखों में कुछ ख्वाब जड़ पकड़ने लगे थे कि फिर से वही दरबदरी, वही सवालात,
वही बेयकीनी और वही अनजाना सा खौफ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ है। नाज़रीन, अल्मोड़ा से निकले तो किस्मत गुरुदत्त को पूना ले गई। यहाँ प्रभात स्टूडियो में 50 रुपए महीने पर बतौर असिस्टेंट डांस डायरेक्टर काम मिल गया। उन दिनों प्रभात स्टूडियो में हम एक हैं की शूटिंग चल रही थी। उसमें मरकजी किरदार निभा रहे थे देव आनंद। बकौल देव आनंद वो जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहीं पास के कमरे में एक खूबसूरत मोहतरमा भी क़याम पजीर थी। नौजवान देवानंद की आंखें उनसे चार हुईं और देखते ही देखते दोनों में कुर्बत बढ़ गई। अजी कुर्बत क्या जनाब, बात इससे भी 2 हाथ आगे निकल गई। एक दिन मोहतरमा ने देवानंद से कहा कि वो अगले दिन उनका जन्मदिन है और वो अपने नए नवेले आशिक को उनकी पसंदीदा शर्ट में देखना चाहती हैं। अब जनाब आशिकी चीज़ ही ऐसी है, माशूक कहे दिन तो दिन, रात तो रात। अगले रोज देव साहब ने अपनी पूरी अलमारी छान मारी पर पसंदीदा शर्ट का नामो निशान नहीं। परेशान होकर देव साहब ने अपनी बहन को फ़ोन किया। उनकी बहन भी उन दिनों पूना में ही रुकी हुई थी। वो आई और कहने लगी, अरे ये लो, यही तो है तुम्हारी फेवरेट शर्ट। अलमारी से कमीज निकालते हुए उनकी बहन ने कहा, देवानंद ने कहा, ये बिल्कुल भी मेरी शर्ट नहीं है। देवानंद दुखी हो गए। अच्छा, मगर ये शर्ट भी इतनी बुरी नहीं है। अरे अच्छी लगेगी तुम पर, पहन कर तो देखो। मरता क्या ना करता, देव साहब धोबी की इस कारिस्तानी को मन ही मन में कोसते हुए किसी दूसरे की शर्ट पहनकर स्टूडियो के लिए रवाना हो गए। भाई प्लान ये था कि स्टूडियो के बाद मोहतरमा से मुलाकात होगी। अब जब वहां पहुंचे तो लगभग उनकी ही उम्र और कद काठी का एक नौजवान स्टूडियो से बाहर निकल रहा था। दोनों जब पास से गुजरे तो नौजवान रुका और कहा, हेलो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम एक हैं कि लीड एक्टर हैं, स्टूडियो में आपके बड़े चर्चे हैं। देवानंद ने कहा, बरखुरदार, बिल्कुल सही पहचाना, खाकसार को देवानंद कहते हैं। गुरुदत्त ने कहा, जी मेरा नाम गुरुदत्त है, मैं मिस्टर बेडिगर को असिस्ट कर रहा हूँ। नौजवान ने खुद का तारुफ कराते हुए कहा। इस सरसरी बातचीत के बाद दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि दोनों की नज़र एक दूसरे की शर्ट पर पड़ी। गुरुदत्त ने कहा, काफ़ी खूबसूरत शर्ट है, कहाँ से खरीदी? देवानंद ने कहा, अरे मियाँ, शर्ट तो आपकी भी काफ़ी शानदार है, आपने कहाँ से ली? गुरुदत्त ने कहा, अजी मैंने तो चोरी की है, अब ये है ही इतनी खूबसूरत, क्या करता? देवानंद ने कहा, और मुझे मेरे धोबी ने इनाम में दी है। ये कहते ही दोनों हंस पड़े। ये खूबसूरत इत्तेफाक देखते ही देखते दोस्ती में बदल गया। एक ऐसी दोस्ती जो उम्र भर की दोस्ती में तब्दील हो गई। इसी दौरान
उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिस दिन देव आनंद प्रोड्यूसर बनेंगे वो गुरुदत्त को डायरेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म में लेंगे, और अगर गुरुदत्त ने किसी फिल्म का डायरेक्शन किया तो वो देव आनंद को बतौर हीरो अपनी फिल्म में लेंगे। खैर, कुछ वक्त के बाद प्रभात फिल्म कंपनी के साथ गुरुदत्त का इकरारनामा भी खत्म हो गया और वो बंबई आ गए। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, है बम्बई मेरी जान। जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ख्वातीनो हजरात, गुरुदत्त के पास कोई काम नहीं था। मन के भीतर का कलाकार मायूसी और गुस्से से भर चुका था। ऐसे में उन्होंने कलम का दामन थाम लिया और अपने अंदर की कश्मकश को कागज़ पर उतारना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दफ्तरों में इंतज़ार के दौरान लिखी गई इस कहानी का उन्वान भी शुरू में कश्मकश ही था। गुरुदत्त ने इस कहानी में अपनी नाराज़गी, नाउमीदी और उलझन सब कुछ उंडेल दिया और खुद से वादा किया कि एक दिन वो इसे पर्दे पर ज़रूर उतारेंगे। बाद में यही कहानी उनकी सबसे मशहूर और कामयाब फिल्म प्यासा की शक्ल में पर्दे पर आई। प्यासा गुरुदत्त की कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई। फिल्म की कहानी, सिनेमाटोग्राफी, संगीत और डायरेक्शन सब एक से बढ़कर एक। यहाँ तक के टाइम मैगजीन ने 1923 के बाद जो 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त जारी की, उसमें भी प्यासा को जगह मिली। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हाजरीन, 1948 में जिद्दी के रिलीज होने के बाद देव आनंद स्टार बन चुके थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर नवकेतन नाम की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोल ली थी। एक दिन शाम को देव आनंद तोहफों और गुलदस्तों के साथ गुरुदत्त के घर पहुंचे। उन्होंने गुरुदत्त को खुशखबरी दी कि वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। देव आनंद ने कहा, गुरु, मैं चाहता हूं कि इस फिल्म का डायरेक्शन तुम करो। गुरुदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देवानंद को अपना वादा बखूबी याद रहा। फिल्म का नाम था बाजी। तो हाजरीन, आगाज हो चुका था खुशी के दिनों का। अब किस्मत ने कर लिया था हमें यूं ही मुंतखब।
आंगन में चांदनी का बसेरा था रोज़ो शब, एक दर्द मन था जिसे दिल की खबर थी सब। बरसों के बाद वादा निभाने वो आया था, नेमत है दोस्ती ये बताने वो आया था, नेमत है दोस्ती ये बताने वो आया था। तो हाजरीन, बाजी फिल्म की लीड सिंगर गीता रॉय थी। वो पहले दिन जब गानों की रिहर्सल के लिए पहुंची तो एक नौजवान उनकी गाड़ी के पास आया और बंगाली में बात करते हुए कहने लगा, आइए मैं आपको रिहर्सल रूम लिए चलता हूँ। बंगाली में बात करते हुए उस आदमी को देखकर गीता रॉय थोड़ा सा चौंकी। अंदर पहुंचकर उन्होंने बर्मन से पूछा, ये बंगाली सज्जन कौन है? बर्मन ये सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, अरे वो बंगाली नहीं है, बस उसका नाम गुरुदत्त है, वो इस फिल्म का डायरेक्टर है। तो ख्वातीनो हजरात, ये थी गीता रॉय की गुरुदत्त से पहली मुलाकात। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। ख्वातीनो हजरात, इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला कभी नहीं थमा। दोनों कभी देवानंद के घर होने वाली पार्टियों में मिलते, तो कभी शूटिंग से वक्त चुरा कर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। बारिश दोनों को बेहद पसंद थी। बारिश होती तो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और सड़क पर निकल पड़ते। घंटों बंबई की भीगती सड़कों पर चहलकदमी करते। गुरुदत्त गीता रॉय पर फिदा हो चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त गुरुदत्त अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जबकि गीता रॉय आसमान का चमकता हुआ सितारा थी। तो हाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो अहदे जवानी वो खराबात का आलम, नगमात में डूबी हुई बरसात का आलम, आवाज़ में कलियों के चटकने की लताफत, रफ्तार में बहते हुए नगमात का आलम, हंसती हुई आँखों से सवालात की बारिश, जलते हुए होठों में जवाबात का आलम। कुछ मुझको खबर थी ना उन्हें होश था अपना, कुछ मुझको खबर थी ना उन्हें होश था अपना, अल्लाह रे मदहोशियो जज्बात का आलम, ए राशे मस्ती का सबब पूछने वाले, देखा है कभी पहली मुलाकात का आलम? बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्यों खोए हुए सर झुका
बाबूजी धीरे चलना। ख्वातीन हजरात, उन दिनों बाजी की शूटिंग शुरू ही हुई थी। सेट पर देव आनंद और गुरुदत्त किसी सीन को लेकर बातचीत में मशगूल थे। अचानक एक शराबी लड़खड़ाता हुआ सेट के अंदर दाखिल हो गया और आसपास रखी चीजों से टकराते हुए बिल्कुल गुरुदत्त के सामने पहुंच गया। सेट पर अफरा तफरी मच गई। सबकी निगाहें उस शराबी पर टिकी थीं। शराबी अपने आप से ऊल जरूल बातें करता, मन ही मन बकबकाता, लेकिन उसका अंदाज मजेदार था। उसकी हरकतें देखकर सेट पर मौजूद तमाम लोग हंसी से लोटपोट हो गए। किसी को कुछ समझ में आता कि अचानक वो संजीदा हो गया और नर्म लहजे में बोला, जी मैंने शराब नहीं पी है, मैं तो बस एक बस कंडक्टर हूँ। बलराज सानी साहब ने मुझे यहाँ एक सरप्राइज ऑडिशन के लिए भेजा है। बिना तैयारी के दिया गया ये ऑडिशन गुरुदत्त को बेहद पसंद आया। उन्होंने बाजी में उस बस कंडक्टर को रोल दे दिया। हाजरीन, उस बस कंडक्टर का नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। जब गुरुदत्त ने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म बाज बनाई तो उसमें बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को भी लिया। जब फिल्म पूरी हुई तो गुरुदत्त ने पूछा, क्रेडिट में नाम क्या दें तुम्हारा? जमालुद्दीन बदरुद्दीन काजी ही लिख दें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, अरे ऐसा लगेगा जैसे किसी का निकाह पढ़ाने जा रहा हूं। गुरुदत्त ये सुनकर हंस पड़े और कुछ देर सोचने के बाद बोले, यार तुम शराबी आदमी की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करते हो और मेरी पसंदीदा विस्की है जॉनी वॉकर, तो जॉनी वॉकर ही तुम्हारा नाम होगा। अब मजे की बात यह है कि जॉनी वॉकर ने अपनी पूरी जिंदगी में शराब कभी छुई तक नहीं थी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। ख्वातीन हजरात, बाजी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कामयाबी मिली कि गुरुदत्त रातों रात एक बड़ा नाम बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो एक एक करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। भाई हाजरीन, ये तो आपको मालूम होगा कि फिल्म डायरेक्शन के दौरान डायरेक्टर की टीम में सबसे अहम किरदार सिनेमाटोग्राफर का होता है, जो कैमरे की नज़र से हर सीन को देखता है और समझता है। डायरेक्टर की सोच को पर्दे पर उतारने का काम सिनेमाटोग्राफी है। बाजी फिल्म में सिनेमाटोग्राफर थे वी रात्रा और उनके असिस्टेंट थे वी के मूर्ति। शूटिंग के दौरान वी के मूर्ति ने एक शॉट ऐसा लिया कि गुरुदत्त उनके मुरीद हो गए। गुरुदत्त ने वी के मूर्ति के छिपे हुए गैर मामूली फनकार और उनके हुनर को पहचान लिया था। अपनी अगली फिल्म जाल में गुरुदत्त ने उन्हें चीफ सिनेमाटोग्राफर बनाया और उसके बाद गुरुदत्त की हर फिल्म में सिनेमाटोग्राफर वी के मूर्ति ही रहे। गुरुदत्त और वी के मूर्ति जब किसी शॉट पर गुफ्तगू करते तो उनकी संगत देखते ही बनती थी। दोनों इतना डूब जाते थे शॉट में कि उन्हें ये भी नहीं एहसास रहता था कि आसपास क्या हो रहा है और कौन लोग बैठे हैं।
ऐसी ही एक गुफ्तगू का एक दिलचस्प वाकया है। गुरुदत्त अपनी दाढ़ी बना रहे थे और साथ साथ वी के मूर्ति से एक शॉट के बारे में बातचीत भी कर रहे थे और कुछ लोग हॉल में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक गुरुदत्त ने रेजर फेंका और जोर से बोलते हुए कहा, क्या करते हो यार तुम मूर्ति, यार बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे। मूर्ति ने डरते डरते कहा, मैंने क्या किया, मैं तो बस शॉट डिस्कस कर रहा था। गुरुदत्त ने अपनी हंसी रोकी और गुस्से को काबू में करते हुए बोले, यार तुमसे शॉट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूछें उड़ा दी हैं। ये सुनना था कि हॉल में बैठे सभी लोग हंस पड़े। शॉट के बारे में सोचते या बात करते वक्त गुरुदत्त इतना खो जाते थे कि आसपास की चीजों का उन्हें ख्याल ही नहीं रहता था। उस दिन शूटिंग में गुरुदत्त को नकली मूंछों से काम चलाना पड़ा। अब अबरार अलवी की सुनिए। अबरार अलवी के मुताबिक ये उनके बेकारी के दिन थे, इसलिए वो भी जाल के सेट पर पहुंच जाया करते थे। एक दिन किसी शॉट को दोबारा लिखने का काम करना था, जिस पर अबरार अलवी से राय मांगी गई। उन्होंने ना सिर्फ तब्दीली का मशवरा दिया बल्कि सीन को अपनी तहरीर से और मजबूत कर दिया। गुरुदत्त उनके काम से इतना मुतासिर हुए कि उन्हें अपनी अगली फिल्म आर पार लिखने का काम दे दिया। अलवी और गुरुदत्त का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद अबरार अलवी भी गुरुदत्त की टीम का कभी अलग ना होने वाला हिस्सा बन गए और उनकी अगली फिल्म साहब बीबी और गुलाम का डायरेक्शन भी अबरार अलवी ने किया। इसी दौर में गुरुदत्त फिल्म्स की बुनियाद रखी गुरुदत्त ने और अपनी ड्रीम टीम यानी राज खोसला, वी के मूर्ति, जॉनी वॉकर और अबरार अलवी को एक छत के नीचे जुटाया। इस टीम ने मिलकर गुरुदत्त फिल्म्स के लिए एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में रची। वो फिल्में जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर दिलों पर दर्ज हो गईं। हाजरीन, गुरुदत्त का यहाँ तक का सफ़र बेहद कामयाब और दिलचस्प था। वो चाहते तो लगातार ऐसी ही फिल्में बनाए जा सकते थे, मगर फिल्मी दुनिया का एक अलमिया है कि वो जिस फॉर्मूले से एक बार कामयाबी मिल जाए और शोहरत मिल जाए, उसे छोड़ना और नए तजर्बे करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो गुरुदत्त थे हाजरीन। उनके अंदर का फनकार फिल्म डायरेक्शन के फन को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता था जहां वो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बन सके। और हाजरीन, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो अपने फन को उस ऊंचाई तक लेकर भी गए। कुछ ही वक्त के बाद गुरुदत्त और गीता दत्त की सगाई भी हो गई और फिर शादी। हालांकि गुरुदत्त और गीता दत्त एक मोहब्बत की दो परतें, एक ख्वाब के दो चेहरे थे। शादी से पहले ही दोनों में ये फ़र्क साफ साफ नज़र आता था। उनके दरमियान जो फासला था वो सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि दो नज़रियों, दो मिजाजों और दो अलग दुनियाओं का था। जहां गीता दत्त एक खुशमिजाज, जिंदगी की हकीकतों से मोहब्बत करने वाली एक रिवायती जज्बात में गुंधी हुई खातून थी, वहीं गुरुदत्त पेचीदा जहन के मालिक, तन्हाई, कश्मकश और अंदरूनी खलफिशार से भरे हुए इंसान थे। पर कहते हैं ना, मोहब्बत में करे क्या कुछ किसी से हो नहीं सकता, मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से हो नहीं सकता। वो इश्क ही क्या जो अंजाम के डर से आगाज में ही अपने परों को समेट ले। इश्क होना था हुआ और तमाम खूबियों और खामियों को दरकिनार कर दोनों शादी के बंधन में बंधे। ये गालिबन गुरुदत्त की जिंदगी का सबसे हसीन दौर था हाजरीन।
गुरुदत्त किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद गए थे, जहां उनकी कार से एक भैंस की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ। एक दिन का सफर 3 दिन में तब्दील हो गया। जिस काम से गए थे वो भी ना हो सका। गुरुदत्त इस बात से काफी चिढ़े हुए थे। मरता क्या ना करता, अब दिन तो काटने ही थे। किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने वो उनके ऑफिस चले गए। अभी पहुंचे ही थे कि बाहर अचानक तेज शोर सुनाई दिया। अभी सामने से एक कार आकर रुकी और अचानक उसमें से एक लड़की बाहर निकली। ये मंजर देखकर गुरुदत्त चंद लम्हों के लिए ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ देखा। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, ये वहीदा रहमान है। हाल ही में इस लड़की ने अभी एक डांस नंबर किया है। अजी जनाब, क्या जलवा है। गुरुदत्त के दिल में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे किसी देरीना तलाश की गिरह खुल गई हो। उन्हें शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी में एक नया बाब खोलने वाली है। उन्होंने सोचा, वहीदा रहमान, ये तो मुसलमान है, इसे तो उर्दू भी आती होगी। उन्होंने फौरन डिस्ट्रीब्यूटर से वहीदा रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। ये गुरुदत्त की वहीदा रहमान से पहली मुलाकात थी। कुछ ही महीने बाद गुरुदत्त ने उन्हें सीआईडी में एक रोल देकर ब्रेक दे दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त प्राइवेट लिमिटेड की लगभग सभी फिल्मों में वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका रही। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया था। इसका असर उनकी जाती जिंदगी पर भी खूब पड़ा। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। हाजरीन, किया आबाद वीराना रहे टूटे मकानों में हमारी जिंदगी गुजरी मुसलसल इम्तिहानों में, मगर जागी हुई आँखों से हमने ख्वाब देखा है, हम अपना घर बनाएंगे किसी दिन आसमानों में, हम अपना घर बनाएंगे किसी दिन आसमानों में। तो हाजरीन, गुरुदत्त का बचपन परेशान हाली में गुजरा था। किराए के मकानों में गुजरा हुआ बचपन अपने लिए आगे चलकर एक बड़े घर का ख्वाब ज़रूर देखता है, अपने घर का ख्वाब। सो एक ख्वाब गुरुदत्त की आंखों ने भी देखा था। बॉम्बे के सबसे आलीशान इलाके में एक आलीशान बंगले का ख्वाब। पाली हिल का इलाका घने दरख्तों, समंदर के किनारों और खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से फिल्मी सितारों का पसंदीदा हुआ करता था। ये इलाका गुरुदत्त को भी काफ़ी पसंद था। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि अगर कभी किस्मत ने साथ दिया तो एक दिन वो इसी इलाके में अपने सपनों का घर बनाएंगे। उन्होंने बिलाखिर पाली हिल में एक पुराना बंगला खरीद ही लिया, बंगला नंबर 48। 3 बीघों में फैला हुआ ये खूबसूरत घर गुरुदत्त के लिए उनके सपनों के घर जैसा था। उन्होंने इसे बड़े अरमानों से बनवाया था,
लकड़ियां कश्मीर से आई थी, मार्बल्स इटली से मंगवाए थे और कालीन लंदन से। हरा भरा सुंदर लॉन, इंतहाई खूबसूरत बगीचा, समंदर के किनारे बसा ये आलीशान बंगला हर किसी को अपना कायल बना लेता था। गुरुदत्त खुद भी अपने घर को पाली हिल का सबसे खूबसूरत घर मानते थे। इस घर में गुरुदत्त और गीता दत्त ने अपनी शादी के बाद सबसे खूबसूरत लम्हे बिताए थे। यहीं उनके बेटे की पैदाइश भी हुई थी। शादी के शुरुआती दिन ख्वाबों की ताबीर जैसे थे, हर लम्हा मुस्कुराहट और हर मंजर बहार। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। अरे आहट पे समझी वो आए गयो रे, अरे आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। मोरे अंगना में जब पुरवैया चले, मोरे द्वारे के खुल गई केवड़िया। मोरे अंगना में जब पुरवैया चले, मोरे द्वारे के खुल गई केवड़िया। मैंने जाना कि आ गए सावरिया मोरे, मैंने जाना कि आ गए सावरिया मोरे, झट फूलन की सजिया पे जा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। अरे आहट पे समझी वो आए गयो रे, अरे आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। हाजरीन, गालिब का एक शेर है, कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। गुरुदत्त की शोहरत आसमान छूने लगी थी और गीता दत्त का करियर ढलान पर था। ये फर्क रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते के आईने में दरारें डालने लगा। कुछ मामूली नोक झोंक बहसो तकरार में बदली और फिर उनकी जिंदगियों का महवर ही बदल गया। गीता दत्त के दिल में ये वहम जन्म लेने लगा था कि जब से हम इस बंगले में आए हैं, खुशियों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। इस घर पर कोई साया है, कोई मनहूस साया, जो हमारी खुशियां निकल गया है। यही वो मकान था जिसे गुरुदत्त ने कभी अपने ख्वाबों का घर कहा था। अब वही घर उनके लिए एक कैद खाना बन चुका था और वो इस कैद से छुटकारा चाहते थे। कुछ सालों बाद एक दिन गीता दत्त बंगले के गेस्ट हाउस में आराम फरमा रही थीं, तभी अचानक उन्हें कुछ शोरगुल सुनाई दिया। वो बाहर आईं तो देखा कि कुछ मजदूर बंगले की दीवारें तोड़ रहे हैं। उन्होंने फौरन गुरुदत्त को फ़ोन किया। मैंने ही उन्हें तोड़ने के लिए कहा है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से गुरुदत्त की आवाज़ आई, हम होटल में रहेंगे, मैंने कमरे पहले ही बुक कर लिए हैं। देखते ही देखते गुरुदत्त के सपनों का घर खंडर में तब्दील हो गया। जैसे किसी फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद सेट को तोड़ दिया जाता है, ठीक वैसे ही। मतलब घर ना होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ ज्यादा खतरनाक होती है। गीता, जो कभी कहकों की तस्वीर थी, अब उदासी की मूरत में तब्दील होती जा रही थी। गुरुदत्त भी
दिन ब दिन फिल्म के किरदारों की तरह होते जा रहे थे, तन्हा और खामोश। शादी चल नहीं रही थी, दरमियान में बदगुमानी की एक मजबूत दीवार थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। हाजरीन, 1958 में गीता दत्त को लिखे एक खत में गुरुदत्त कहते हैं, प्रिय जो भी हो, ये याद रखना कि तुम मेरा हिस्सा हो और हमेशा मेरा हिस्सा रहोगी। शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शायद जब मैं ना रहूं तब तुम्हें इसका एहसास हो। जब गुरुदत्त ने महसूस किया कि गीता दत्त उनसे दूर हो रही हैं, उनके अंदर का वो नर्म गोशा जाग उठा जो अक्सर उनकी वहशत के पांव तले दब जाया करता था। और फिर एक खामोश सी कोशिश हुई मोहब्बत को दोबारा आवाज़ देने की, रिश्ते को फिर से बहाल करने की और गीता दत्त को वापस पाने की। गुरुदत्त ने गीता दत्त को अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पर दावत दी। बैरूत की फिजाएं, वो समंदर, उन दोपहर की खामोशियों और रात की हल्की हल्की शराबों में ऐसा कुछ था जिसने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर दी। वहीं गुरुदत्त ने एक फैसला लिया, ना सिर्फ गीता दत्त के करियर को सहारा देने का, बल्कि उन्हें हीरोइन के तौर पर लॉन्च करने का। बैरूत से लौटते ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया। फिल्म का नाम था गौरी और उसकी हीरोइन थी गीता दत्त। सुबह का वक्त था, कलकत्ता की फिजा में शूट की गहमा गहमी थी। गुरुदत्त ने आवाज़ दी, गीता को बुलाओ, शॉट रेडी है। किसी ने कहा, जी मैम मेकअप कर रही हैं, कुछ वक्त लगेगा। इस सीन में कहानी के हिसाब से गीता दत्त को एक सादा सी घिसी पिटी साड़ी पहननी थी, खुले बाल, माथे पर बिंदी, कोई सजावट नहीं, कोई चमक धमक नहीं। मगर देर होती गई, गुरुदत्त के सब्र का पैमाना जवाब देने लगा। उन्होंने रामू सरिया से कहा, जाओ देखो क्या हो रहा है। रामू गए। मेकअप रूम में गीता आईने के सामने बाल संवार रही थी। भाभी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस भैया आती हूँ।
ये कहकर गीता दत्त वापस अपने बाल संवारने लगी। जब रामू वापस नहीं लौटे तो गुरुदत्त खुद चल दिए। दरवाजा खोला और अंदर का मंजर देखकर आग बबूला हो गए। ये क्या है? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? मैंने कहा था ना कि किरदार सिंपल है। ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल, क्या क्या गांव की औरतें ऐसे दिखती हैं? यूनिट के सब लोग सुन रहे थे। गीता का चेहरा हैरत और दुख से पथराया हुआ था। फिर वो भी टूट गईं और उन्होंने जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? यही ना कि मैं वहीदा रहमान से बदतर लगूं? चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। गुरुदत्त पलटे और सन्नाटे में बस एक सदा तैर गई, पैकअप। वो शॉट जो होना था कभी नहीं हुआ, बस रह गई एक कभी न मिटने वाली खामोशी और दो टूटते हुए दिलों की आखिरी बाज़गश्त। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हाजरीन, गुरुदत्त मिजाज से जुनूनी थे। उन्हें अच्छी फिल्में बनाने का जुनून था। कोई अच्छी कहानी सुनते तो फौरन उसे पर्दे पर उतारने के मंसूबे बनाने लगते। 1959 का वो साल था जब उन्होंने अपने तमाम दुखों को कागज़ के फूल के फ्रेम में समो दिया। ये फिल्म उनके लिए महज सिनेमा नहीं, एक इकरार था अपनी शिकस्तों का, अपनी तन्हाइयों का और एक ऐसी मोहब्बत का जो पूरी होकर भी मुकम्मल ना हो सकी। कागज़ के फूल में बम्बई फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है ये दिखाया गया था। जूनियर आर्टिस्ट से लोग कैसे पेश आते हैं, कामयाबी को किस तरह सराहा जाता है और कैसे नाकामी का एक झटका आपको हाशिए पर ला फेंकता है। उन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म भी प्यासा की तरह सराही जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाद में चलकर इस फिल्म को गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों में से एक का दर्जा जरूर हासिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई और गुरुदत्त इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने इस फिल्म में अपना सब कुछ झोंक दिया था। वो इतने मायूस हुए कि उन्होंने दोबारा फिल्म ना बनाने का फैसला किया। एक्टिंग के रोल्स कुछ एक ज़रूर किए, लेकिन इसके बाद
कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। हाजरीन, गुरुदत्त अपनी जाती जिंदगी में भी पेचीदा इंसान थे। कुछ कुछ अपनी फिल्मों के किरदारों की तरह समाज के बेबुनियाद ढांचों पर सवाल उठाता हुआ व्यवस्थाओं से निराश एक खामोश कलाकार जो इस शोरगुल से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। वो हर वक्त तजस्सुस में मुब्तला, अपने सवालों में उलझा हुआ महसूस करते, अपने अंदर की परछाइयों से लड़ते हुए उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका था। 2 बार बाकायदा खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर चुके थे। एक बार खुदकुशी की कोशिश की तो 3 दिन और 3 रातें कोमा में रहे। उन्हें शायद जिस शय की तलाश थी वो हर कीमत पर उसे पा लेना चाहते थे। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहाँ को कहीं बेखुदी से हम गमज़दा है लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से कागज के फूल की नाकामी के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गए थे। बीवी बच्चों से अलग एक फ्लैट में अकेले रहते थे। कुछ दोस्तों और अजीज़ों के सिवा किसी से नहीं मिलते थे। बाहर की दुनिया के लिए जो दरवाजे पहले से बंद थे अब पूरी तरह मुकफ्फल हो चुके थे। शराब और नींद की गोलियों के सहारे रातें गुजरने लगीं। उन दिनों उनका कोई साथी था तो बस उनका खाली कमरा, खाली बिस्तर, खाली आँखें और उन आँखों में दूर दूर तक फैली हुई कभी ना ख़त्म होने वाली तन्हाई। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। उन दिनों बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग चल रही थी। रोज़ की तरह उस दिन भी गुरुदत्त स्टूडियो पहुँचे। दोपहर के खाने के बाद पैकअप करके पतंग उड़ाने का फैसला किया। ड्राइवर को भेजकर बच्चों को बुलवाया और उनके साथ काफ़ी देर तक पतंग उड़ाई। फिर बच्चों के साथ स्टूडियो से निकले और चिराग दीन बुटीक पर शॉपिंग की। बच्चों के लिए और भाई देवी दत्त के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदे। दिन भर की मस्ती के बाद बच्चों को उनके घर छोड़ा और ख़ुद देवी दत्त के साथ अपने फ्लैट पर आ गए। देवी दत्त को भूख लगी तो गुरुदत्त ने उनके लिए ऑमलेट भी बनाया। देवी दत्त जब घर से जाने लगे तो उन्होंने अगले दिन की क्रिकेट मैच की 2 टिकटें भी देवी दत्त को दी। अब देवी दत्त के जाते ही अबरार अलवी पहुंच गए। उस रात अबरार अलवी बहारें फिर भी आएंगी के आखिरी सीन पर काम कर रहे थे। ये सीन फिल्म की हीरोइन माला सिन्हा पर फिल्माया जाना था, जो तमाम दुखों से परेशान होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और दम तोड़ देती हैं। अबरार अलवी ने सीन गुरुदत्त को सुनाया और उनसे राय भी मांगी, पर गुरुदत्त खामोश रहे और शराब पीते रहे।
अबरार अलवी ने दोबारा पूछा, आपको पसंद नहीं आया शायद क्या? अपने ध्यान में गुम गुरुदत्त ने इस बार जवाब दिया, तुम्हें पता है अबरार, मुझे डर है कि मैं किस दिन पागल हो जाऊंगा। तन्हाई वो बला है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद गुरुदत्त ने अबरार अलवी से सीन दोबारा सुनाने को कहा। सीन का खात्मा हीरोइन माला सिन्हा की मौत से होता है और क्लाइमेक्स में कैफी आजमी की लिखी हुई 2 लाइनें, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। इस बार पूरे ध्यान से सुनने के बाद गुरुदत्त ने अबरार अलवी की तारीफ की और कहा, अबरार, इस फिल्म में हमारी हीरोइन छा जाएगी। अबरार देर रात तक स्क्रिप्ट को पूरा करने में लगे रहे। जब उन्होंने गुरुदत्त से खाने का पूछा तो गुरुदत्त ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। इतना कहकर गुरुदत्त अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये दरवाज़ा अंदर से दोबारा कभी नहीं खुलने वाला था। हाज़रीन, गुरुदत्त जा चुके थे। जैसे किसी सीन का क्लोजअप जिसमें कैमरा रुक जाता है और रोशनी रफ्ता रफ्ता आंखों से ओझल हो जाती है। गुरुदत्त की फिल्म जैसी जिंदगी का पर्दा गिर चुका था, सिर्फ और सिर्फ 39 साल की उम्र में। लेकिन हाज़रीन, सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ एक फिल्म की नाकामयाबी इतना तोड़ सकती थी गुरुदत्त को कि वो जिंदगी से ही मुंह मोड़ लें? हमारा ख्याल है नहीं। ये पर्दा सिर्फ एक फिल्म की नाकामयाबी की वजह से नहीं गिरा था, इसे दरअसल गिरना ही था। गुरुदत्त बरसों से इस खाई के मुहाने पर खड़े थे। जिंदगी के बरक्स मौत उन्हें ज्यादा खींचती थी अपनी तरफ, उसकी कशिश ज्यादा थी। प्यासा के शायर विजय को दरअसल जिंदगी की प्यास थी, लेकिन बदकिस्मती से वो जिस दुनिया में रह रहे थे उसमें फनकार और उसके फन को पूजा तो जाता था, लेकिन उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद और अफसोस कि गुरुदत्त की ये प्यास भी उनके जीते जी कभी पूरी ना हो सकी और शायद इसीलिए इस बनावटी और फर्जी दुनिया से दूर चले गए। कागज के फूल की नाकामयाबी तो बस एक बहाना थी। हाज़रीन, खैर, बेवक्त की इस मौत ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास था और हर शख्स हैरत में मुब्तला था। कैफी आज़मी ने गुरुदत्त की मौत का गम कुछ इस तरह बयान किया था। उन्होंने लिखा था, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, डरता हूँ कहीं खुश्क ना हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरार ढले शमा बुझाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, साकी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। हर सुबह हिला देता था जंजीर जमाना, क्यों आज दीवाने को जगाता नहीं कोई। अर्थी तो उठा लेते हैं सब अश्क बहा के, अर्थी तो उठा लेते हैं
अब अश्क बहा के नाजे दिले बेताब उठाता नहीं कोई, नाजे दिले बेताब उठाता नहीं कोई, नाजे दिले बेताब उठाता नहीं कोई। की दुनिया ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। हजरात, I would like to call Asha Batra, Vikas Jalan on stage, my team. विकास सर, सुदीप तबले पर, अंकित गिटार, लतिका जैन सिंगर, ऋषभ, और मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश हमको इतने प्यार से नवाजने के लिए गोवा में। मैं इफ़ी का और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आशा बत्रा जी का, विकास जी का, आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी दास्तान पेश कर सकें। राहुल रवेल सर का इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको इंट्रोड्यूस राहुल सर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फौजिया दास्तान गो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आपको पता चलेगा कि हम आगे और कौन सी दास्तानें कहाँ कहाँ सुना रहे हैं। हमने मीना कुमारी की दास्तान की है, हमने मधुबाला की दास्तान की है म्यूज़िकल, और हमें उम्मीद है कि आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। Thank you so much. I would now like to invite our esteemed steering committee member and renowned producer, Shri Ravi Kotarakara sir, to please felicitate our distinguished guests. Thank you everyone for being part of this inspiring experience. We hope you enjoyed it as much as we did hosting it.